Hello friends, we are back and today we will be starting with ecosystem regulation, which you know it is the Paristhitiki Tantra Viniyaman, right? Viniyaman means we have to regulate it. Okay. So ecosystem regulation we will talk about Paristhitiki Tantra ka Viniyaman because it is a very important topic as far as the ecosystem is concerned. So all the ecosystem regulate themselves and maintain themselves. जितने भी इकोसिस्टम आपके होते हैं दे ट्राई टू रेगुलेट एंड मेंटेन देमसेल्व्स बिकॉज दे आर सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम्स राइट खुद से ही खुद का ध्यान रखते हैं आत्मनिर्भर जिसे कहते हैं खुद पे अंडर अ सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस एनी एनवायरमेंटल स्ट्रेस ओके एनी एनवायरमेंटल स्ट्रेस जस्ट अ मिनट एनी एनवायरमेंटल स्ट्रेस So any environmental stress try to disturb the normal ecosystem function. कोई भी उसके ऊपर अगर तनाव की condition आएगी या कोई भी stress आएगा on ecosystem, so and that will try to disturb that ecosystem. However, the ecosystem by itself try to resist the change and maintain itself in equilibrium. So ecosystem would try to combat that stress. वो तनाव को वो neutralize करने की कोशिश करेगा, right? And this property of ecosystem, right, with the environment due to a property known as homeostasis. So because of homeostasis it wants to maintain itself in equilibrium, right? So it will try to counteract that stress या वो तनाव जो है उसको वो अपोज करने का प्रयास करेगा, right? यहाँ पे होमियोस्टेसिस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है होमियोस्टेसिस. सो होमियोस्टेसिस इज द इनहेरेंट मींस अनुवांशिक प्रॉपर्टी है ये आपके इकोसिस्टम की या पारिस्थितिकी तंत्र की property of all the living system to resist the change, right? So whenever any stress is imposed, any of the living organisms or living system will resist that change. उस परिवर्तन को वो oppose करेगा, right? So however the system can show the tolerance or resistance only. वो कुछ कुछ उसका विरोधाभास दिखाएंगे, tolerant दिखाएंगे या resist करेंगे उस change को, right? And within a maximum and minimum range, एक range के अंदर कि कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना, which is its range of tolerance known as homeostatic plateau. उसको homeostatic plateau बोलते हैं. Homeostatic basically is called as समस्थैतिक जो कंडीशन होती है ना आपकी, मींस इक्वल कंडीशन में रहे, एक जैसी कंडीशन में रहे, समस्थैतिक इसको बोलते हैं. Within the range, if any stress try to cause a deviation, then the system has its own mechanism to counteract these deviations, which are known as negative feedback mechanism. तो system का अपना एक feedback mechanism होता है negative और positive, right? So अगर जो stress system के ऊपर है, कोई तनाव है और वो उसको डेविएट करने के लिए फोर्स करेगा सिस्टम को या इकोसिस्टम को, सो इकोसिस्टम itself has its own mechanism to counteract, and they do so by negative feedback mechanism. So negative feedback mechanism are the deviation and countering mechanism which try to bring the system back to its ideal condition. तो अगर उसको बढ़ा देता है तो उसको ओरिजिनल स्टेट पे लाएगा. अभी हम डायग्राम की हेल्प से भी इसको देखेंगे इकोसिस्टम रेगुलेशन को. नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि अगर कोई डेविएशन ऐसा हुआ है जो उसको बढ़ा रहा है स्ट्रेस को या तनाव को, तो काउंटरैक्ट करने के लिए मैकेनिज्म है उसको, so that it can be brought back to its original state पे लाएंगे, right? Then but if the stress is too high beyond the range homeostatic plateau, अगर ये homeostatic plateau को क्रॉस कर जाएगा तो फिर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है वहां पे, right? That place the positive feedback mechanism will start operating, and these are the deviation accelerating mechanism. जो पॉजिटिव वाला है वो उसको और बढ़ा देगा. सो द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऐड टू द स्ट्रेस. ये ध्यान रखने वाली चीज है कि जो पॉजिटिव फीडबैक राइट मैकेनिज्म होता है वो स्ट्रेस को बढ़ा देता है, ऐड कर देता है, एंड टेंड टू टेक द सिस्टम अवे फ्रॉम द ऑप्टिमल कंडीशंस. काफी दूर ले जाएगा, एक्सेलरेट करने लगेगा सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा. इसको डायग्राम की हेल्प से देखेंगे हम अभी, राइट? इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ to depict the ecosystem regulation mechanism, and human beings should try to keep the ecosystem within the homeostatic plateau. Human being के लिए बताया, ये बोला जाता है human beings के लिए कि उनको homeostatic plateau के अंदर ही रखना चाहिए. मतलब जो समस्थैतिक आपका चित्र दिखाएंगे, so they should not contribute to positive feedback, otherwise the ecosystem will collapse.
तो अगर पॉजिटिव फीडबैक की तरफ ये निकल गया मैकेनिज्म की तरफ, तो इकोसिस्टम की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, heavy number of chances that it will collapse. So you can see here this diagram which is showing these mechanisms. So we can see here that let us suppose this is the stress on x-axis, and on y-axis you can see on x-axis we have stress and this is the system function, right? जो आपका तंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रेस है या तनाव है वो बढ़ गया और यहाँ पे कम हो गया। अगर तो वो बढ़ गया तनाव, if the stress have increased, तो नेगेटिव फीडबैक लूप उसमें लगेगा, और नेगेटिव फीडबैक लूप क्या करेगा, उसको काउंटरैक्ट करेगा, उस स्ट्रेस को या तनाव को काउंटरैक्ट करेगा, कोशिश करेगा कि ओरिजिनल स्टेट की तरफ इधर ले जाया जा सके, ठीक है, यहाँ ले जाया जा सके जो ओरिजिनल स्टेट है ना। और ये जो प्लेटू आपका दिख रहा है यहाँ पे इस तरह का, दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टैटिक प्लेटू, ओके, समस्थैतिक प्लेटू उसको बोलते हैं। और अब क्या है कि अगर लेट अस सपोज कि स्ट्रेस और ज्यादा बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, राइट, है ना, तो ये क्या करेगा, और पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा और डेथ और कोलैप्स हो जाएगा इकोसिस्टम का, अगर ये बढ़ता ही चला गया। अगर देखिए if it has crossed the homeostatic plateau, आप यहाँ देख सकते हैं, if it has crossed the homeostatic plateau, positive feedback, then death or collapse, बहुत सारी डेथ होंगी, मृत्यु होगी बहुत ज्यादा, और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, वो मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका प्रॉपर, राइट। दूसरा हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे, हाँ, दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं अच्छी, दैट इज इकोसिस्टम रेगुलेशन बाय होम्योस्टेसिस। मैंने बताया आपको समस्थैतिकी से चलता है, राइट, समस्थैतिक कंडीशन जो होती है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस अगर लगाएंगे तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट ऑपरेटिंग, तो हमने यहाँ पे स्ट्रेस लगाया था, तो नेगेटिव फीडबैक स्ट्रेस ऑपरेट करना चालू कर देगा, उसको कम करेगा, ट्राइंग टू काउंटर द स्ट्रेस एंड रेगुलेट द सिस्टम। बट बियॉन्ड द होम्योस्टैटिक प्लेटू, अगर वहां से ऊपर ये चला गया तो फिर ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में चला जाएगा और बहुत सारी डेथ होगी और इकोसिस्टम आपका कोलैप्स कर जाएगा। एक तो ये मैकेनिज्म है, राइट। सेकंड जो आप देख सकते हैं इसमें, द सेकंड थिंग व्हिच वी कैन ऑब्जर्व, but beyond the homeostatic plateau, the positive feedback starts which further accelerate the stress effect causing death or collapse of the organic system. So ये सारा है, इधर दिखाया हुआ देखिए, जो स्ट्रेस थोड़ा आपका कम हो गया, राइट, या ये थोड़ी कम स्ट्रेस है, इधर नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन को दिखाया हुआ है, ये पॉजिटिव को दिखाया हुआ है, तो ये इट विल सर्कुलेट। बट द मेन थिंग इज दैट कि जो अगर आपका स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं उसको, राइट, so negative feedback mechanism start operating which will counteract that stress, मतलब अपोज करेगा उस स्ट्रेस को या तनाव को, और trying to counter the stress and regulate the system, उसको नॉर्मल की तरफ लाए, राइट। तो इसी तरह से, और अगर ये आगे चला गया, मतलब पारिस जो होम्योस्टैटिक प्लेटू है, ये समस्थैतिकी प्लेटू है, उसके ऊपर चला गया, तो पॉजिटिव रहेगा और बहुत सारी डेथ होगी यहाँ पे और कोलैप्स होगा। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है होम्योस्टेसिस जो आपका है इकोसिस्टम का, जिसको समस्थैतिकी भी बोलते हैं, और इकोसिस्टम रेगुलेशन जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र का विनियमन, वो इसी के माध्यम से होता है, इसी के तरीके से होता है। So with this we are end up with this ecosystem regulation thing, and hope you are enjoying this lecture. In the next time we will be surely bringing you ecological succession, a short video on ecological succession. Hope you are studying hard and working hard. Till then you can work hard on this and keep learning and keep studying the subject, right? Hope you are liking it. Thank you very much. Thanks for supporting us.